Hallelujah. Praise the Lord to everybody. And you're all welcome to the Bible study of Tabernacle Ministry International. अनि और इस सब में आपका स्वागत है और हम इस समय इस वचन में जाएंगे और परमेश्वर मुझे विश्वास है आपकी भेंट लेगा. Let's all pray everybody. Come on. Thank you, Lord my God. I give you the praise. I give you the worship. I give you the glory. I give you the honor, Lord, for thou faithful God, O Lord. There is none like thee. And blessed Lord my God, we are so glad to be in your holy and awesome presence, beautiful Holy Spirit of God. Come, mighty comforter, come, mighty counselor, thou art welcome, Lord my God, thou art welcome in our lives, thou art welcome in this place right now, Lord. Thou art welcome in our locations wherever we are located and tuned in to hear this word, O Lord my God. Holy Spirit of God, hand us all into mighty holy hands, and every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's trying to take us away from you, that's trying to distract us, O Lord my God, that is trying to bring in lethargy, and Lord my God, and lukewarmness, O Lord my God, and dryness towards you, Lord my God, but I'm just trying to consume with the fire of the Holy Ghost. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, I'm going to come out of darkness in the name of Jesus. Get out, come out in Jesus' mighty name. And who Spirit of God, art welcome, Lord my God, thou art welcome, Lord. Thou art welcome, Lord my God, thou art welcome, and lead us in this time, Lord, not I, but you speak, revealing truth and changing lives. And thank you, Lord my God, a million times for changing our word from Logos into Rhema, Lord. Speak to our lives, Lord. Give us the grace, O Lord my God, to understand your word and inundate us by the revelation of your word, Lord my God. And give us the grace, O Lord my God, to apply your word in our lives and to change our lives accordingly. In Jesus' mighty name we pray and we ask. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. और आइए हम इस अद्भुत सफर में चले जाते हैं, शुरुआत करते हैं. आज का जो विषय आपने टॉपिक देखा ही होगा, फेथ द करेंसी ऑफ हेवन, विश्वास स्वर्गीय चलन या फिर स्वर्ग का चलन. विश्वास चलन का मतलब होता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का जो पैसा होता है, जिस पैसे के द्वारा हम कुछ भी खरीद सकते हैं, उसको कहते हैं चलन. ओके, या फिर करेंसी इंग्लिश में. सो माय टॉपिक टुडे इज फेथ द करेंसी ऑफ हेवन, विश्वास स्वर्ग का चलन. आमीन. या फिर स्वर्ग का चलन विश्वास. आइए हम इस अद्भुत विषय में सफर शुरू करते हैं. मेरा विश्वास है कि बहुत लोगों का आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी एक ऐसी ज़रूरत है और बहुत लोग इस विषय में अटके पड़े हैं. उन्हें नहीं मालूम कैसे आगे जाना है. बहुत कुछ चीज़ें उनको परमेश्वर से चाहिए तो है, लेकिन कैसे प्राप्त करें, जवाब कैसे पाए, यहाँ पर बहुत लोग अटक गए हैं. और पवित्र आत्मा ने मुझे इस विषय के बारे में कल जब मैं दुआ कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे इस बात को महसूस कराया कि इस विषय को तू ले, ताकि जो भी परमेश्वर से जवाब चाहते हैं या उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उनकी मंशा पूरी हो जाए, उनको जवाब मिल जाए. आमीन. आइए हम इस सफर को शुरू करते हैं. आमीन. तो मेरा आज का जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फेथ, विश्वास है क्या. आइए हम खोलेंगे इब्रानी की पत्री, इसका 11वां अध्याय वचन 1, हिब्रू लोकास पत्र याचा 11वां अध्याय वचन 1, Hebrews chapter 11 and verse 1. Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Amen. तो बाइबल में लिखा गया है कि विश्वास वो पदार्थ है जिस चीजों के बारे में मैंने आशा रखी है, या फिर वो सबूत है जो चीजें मुझे नहीं दिखती और मुझे वो चाहिए. आमीन. मसलन कि अगर समझो मुझे ये एप्पल पेंसिल चाहिए और ये मुझे खरीदनी है, तो पहले मुझे परमेश्वर ये चीज़, ये एप्पल पेंसिल पाने से पहले मुझे विश्वास देगा, उस पेंसिल के बारे में विश्वास देगा कि मुझे वो पेंसिल मिल चुकी है. और वो विश्वास जो होगा वो होगा पदार्थ, वो होगा सबूत, और उसके बाद में मुझे ये पेंसिल मिलेगी. ओके. तो परमेश्वर के लोगों, आइए हम इस विषय को, इस व्याख्या को आइए और हम गहराई में जानेंगे. व्हाट इज फेथ.
Your faith is a raw material which God is going to use to give you your miracle. Amen. आपका विश्वास वो कच्चा पदार्थ या कच्चा माल है जिसका उपयोग परमेश्वर करने वाला है आपको आपका चमत्कार या जवाब देने के लिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपका विश्वास वो कच्चा माल है जिसका उपयोग, क्या मैंने कहा, जिसका उपयोग परमेश्वर करने वाला है आपको आपका जवाब देने के लिए या चमत्कार देने के लिए। ओके, अभी सबसे पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर हमारे अपेक्षाओं के द्वारा हमारे अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता। मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर हमारे अपेक्षाओं को पूरा नाही करता. देव आपल्या अपेक्षांना पूर्ण नाही करत. देव आपल्या अपेक्षांद्वारे संचालित होत नाही. पर गॉड इज नॉट मूव्ड बाय आवर एक्सपेक्टेशंस. परमेश्वर हमारे अपेक्षाओं के द्वारा कार्य नहीं करता है. नहीं, परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार कार्य करता है. ओके, मैंने फिर से कह रहा हूं, विश्वास के अनुसार कार्य करता है. देव आपल्या विश्वासानुसार कार्य करत असतो. हे कधी विसरू नका. गॉड वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर फेथ, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन. ओके, सो योर फेथ इज द रॉ मटीरियल. आपका विश्वास वो कच्चा माल है जिसका इस्तेमाल, मेरे शब्दों को प्लीज आपके जहन में उतारो, जिसका इस्तेमाल आपके विश्वास का इस्तेमाल परमेश्वर करेगा आपको आपका जवाब या चमत्कार देने के लिए. ओके, आमेन. ओके, सो आई रिपीट नाउ वन्स अगेन, योर फेथ, मराठीत सांगतो, तुमचा विश्वास तो कच्चा माल आहे, त्याचा उपयोग देव करत आहे किंवा करणार आहे तुम्हाला तुमचं उत्तर किंवा चमत्कार देण्यासाठी. आता प्रॉब्लेम इथं हा होतो की आपला विश्वास नीट नसल्या कारणाने किंवा आपला कच्चा माल नीट नसल्या कारणाने देव आपल्याला आपलं उत्तर किंवा चमत्कार नहीं देऊ शकत, क्योंकि हमारा विश्वास सही नहीं है, क्योंकि हमारा कच्चा माल वो सही नहीं है, वो उपयुक्त नहीं है. इसलिए परमेश्वर हमें हमारा चमत्कार या जवाब नहीं दे सकता. आई बात समझ में? ओके, समझो मुझे ये पेंसिल बनानी है और इस पेंसिल को लगने वाला जितना भी कच्चा माल है, अगर उसमें अगर किसी भी चीज में, किसी भी कच्चे माल में अगर कोई भी खराबी आती है या खराबी है, तो मैं इस पेंसिल को उस कच्चे माल के द्वारा बना नहीं सकता. आमेन. ओके, तो हमें ये बात का इल्म होना जरूरी है कि मेरा विश्वास वो सही होना जरूरी है. माझा विश्वास नीट असणं गरजेचं आहे. जर का माझा विश्वास नीट नाही तर देव मला उत्तरही नीट देऊ शकत नाही. देव मला उत्तर नाही देऊ शकत. मैं कई दिवसांपूर्वी, कुछ दिन पहले मैंने एक संदेश लिया था मेरे कलीसिया में. उस संदेश का नाम था कि अकॉर्डिंग टू योर फेथ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार. ओके, उसमें मैंने एक वाक्य बड़े ही प्रबलता से कहा था कि परमेश्वर हमारे अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं करता. परमेश्वर तुम्हारे अपेक्षाओं को पूरा नहीं करने वाला. अगर मैं अपेक्षा रखता हूं कि परमेश्वर मुझे चंगा रखे, तो परमेश्वर नहीं करने वाला. ओके, अगर मैं अपेक्षा रखता हूं कि परमेश्वर मुझे मेरे सारी कमियों को पूरा करे, जरूरत को पूरा करे, तो परमेश्वर नहीं करने वाला. अगर मैं अपेक्षा रखता हूं कि परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, तो परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करने वाला. अगर मैं अपेक्षा रखता हूं कि परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखेगा, तो परमेश्वर मुझे सुरक्षित नहीं रखने वाला. परमेश्वर के लोगों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि परमेश्वर जो है ना, वो तुम्हारे अपेक्षा के अनुसार कार्य कभी नहीं करने वाला. बहुतांश लोग अपेक्षा परमेश्वर से रखते हैं और इसीलिए उनको उनका जवाब नहीं मिलता है. परमेश्वर तुम्हारे विश्वास के अनुसार कार्य करने वाला है. परमेश्वर तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें जवाब देने वाला है. ओके, ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी है. अब कोई पूछेगा, अपेक्षा और विश्वास में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है.
आसमां और जमी का अंतर है। ओके, मसलन अपेक्षा, इसका मतलब यह है कि मैं अपेक्षा रखता हूं कि परमेश्वर मुझे मेरी सारी जरूरत को पूरा करेगा। ओके, ये मेरी अपेक्षा है। इसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट या मेरा सहभाग कुछ भी नहीं, जीरो। मैं ऐसा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपेक्षा रखता हूं। मसलन अगर मैं होटल में जाता हूं और मैंने ऑर्डर दिया है, तो मेरी अपेक्षा होती है कि वेटर मुझे मेरा खाना आके मेरे सामने परोसेगा। ये अपेक्षा है। अमेन। मैंने ओला बुक की है तो ओला जब मैंने बुक की है तो मेरी अपेक्षा क्या होती है कि मैं जब ओला गाड़ी आएगी और मैं ओला में जब बैठूंगा ऐसा, तो ड्राइवर मेरे को मुझे सही स्थान पे लेके जाएगा और गाड़ी सही चलाएगा। यह अपेक्षा। तो मैं ऐसा बैठूंगा या फिर मैं ऐसा बैठूंगा या फिर मैं ऐसा बैठूंगा या फिर मैं ऐसा बैठूंगा उस कार में। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसमें मेरा सहभाग, माझी इन्व्हॉल्वमेंट किंवा माझा सहभाग ओला ड्रायव्हर ड्रायव्हिंग करण्यामध्ये किंवा ती कार नीट चालवण्यामध्ये शून्य आहे. मी फक्त शांत बसलेलो आहे, बस. बाकी माझा सहभाग काय आहे? काही नाही. तर विश्वास आणि अपेक्षा इथंच फारकत येते. विश्वास में और अपेक्षा में यहीं पर फर्क आता है, क्योंकि ओला में मैं तो सिर्फ बैठा हूं, मेरा सहभाग कुछ भी नहीं है। वो गाड़ी सीधी जाने में, सही जाने में, ड्राइवर गाड़ी सीधा चलाए। मसलन समझो कि मैं बस में बैठता हूँ या फिर ट्रेन में बैठता हूँ, मेरी अपेक्षा होती है कि ड्राइवर मुझे सही, सुरक्षित और सही स्थान पे लेके जाएगा। ये मेरी अपेक्षा होती है और वो ऐसा करता है। तो इसमें उस ट्रेन में, उस प्लेन में, उस बस में, उस ओला में मेरा सहभाग कुछ भी नहीं है, जीरो है, शून्य है। मुझे सिर्फ शांत बैठना है। आमेन, राइट। लेकिन विश्वास ऐसा नहीं होता है। विश्वास में परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करता है। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री का 3 अध्याय वचन 20। इफिस का पत्र 3 अध्याय वचन 20। Ephesians chapter 3 and verse 20. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or think, according to the power that worketh इन अस। तो मैंने कुछ भी अगर अपेक्षा रखी है परमेश्वर से, या फिर मैं कुछ भी परमेश्वर से मांग रहा हूं जो कल्पनाओं के भी परे है, जो सोच के भी ऊपर है, अगर मैं ये सब मांग रहा हूं, परमेश्वर उसको ना नहीं कहता है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है परमेश्वर उस विश्वास की, कि वो विश्वास वो आपके द्वारा परमेश्वर कार्य करने वाला है। आपने कुछ भी बड़ा मांगा है या आप सोच रहे हो, वो पूरा देने को उससे भी ज्यादा, आपके कल्पनाओं से भी ज्यादा, आपकी कल्पनाओं से भी ऊपर, आपके विचारों से भी ऊपर वो दे सकता है, वो समर्थ है, वो कर सकता है, वो करेगा। लेकिन शर्त इतनी है कि वो आपके द्वारा पूरा होने वाला है। आमेन, आमेन, आमेन। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कि विश्वास जो होता है ना, वो ऐसा बैठ के मैं तमाशा देखूंगा नहीं। विश्वास इज आपका सहभाग उसमें अनिवार्य है। योर इन्वॉल्वमेंट इज इम्पेरेटिव इन यू गेटिंग योर आंसर। आमेन। और your involvement is imperative for you to get your answer, and the involvement is of your faith, और वो सहभाग है आपके विश्वास का। यहीं पर आके हमारी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि विश्वास जो है, विश्वास कभी भी प्रदूषित नहीं हो सकता। You can never have a polluted faith. If you have a polluted faith, it's game over with you. You cannot have a polluted faith. When the moment the faith is polluted, it's over. It's you are never going to get your answer. Please understand this, saints of God. Understand this. Put it in your DNA. When faith is polluted, you have lost your answer. Okay, तो आपका विश्वास आप कभी भी प्रदूषित नहीं कर सकते।
अधूरा नहीं हो सकता है। आपको कोई भी पूरा विश्वास, भले ही वो छोटा हो, लेकिन वो पूरा होना जरूरी होता है, क्योंकि जब वो विश्वास पूरा होता है ना, तभी वो कार्य करता है। विश्वास में समझ लो एक बीज के समान है, एक बीज के समान है, एक पेड़ के बीज के समान है, जो पूरी होना जरूरी है, जो पूरा होना जरूरी है, और उसको जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं तभी उसको अंकुर फूटता है। आमेन। तो विश्वास जो होता है, कभी भी प्रदूषित अगर हुआ तो तुम्हें तुम्हारा जवाब नहीं मिळणे वाला. जेव्हा कधी तुमचा विश्वास जर का प्रदूषित असेल तर तुम्हाला तुमचं उत्तर नाही मिळणार संतो, हे लक्षात ठेवा. पुष्कळ जणांना उत्तर का नाही मिळत? कारण तुम्ही तुमच्या विश्वासामध्ये भयाला पण जागा देता, संशयाला पण जागा देता. बहुतांश लोगों को उनको जवाब उनका नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोग अपने विश्वास में भय को भी जगह देते हैं, संशय को भी या फिर शक को भी जगह देते हैं. उसके वजह से उनको उनका जवाब नहीं मिलता है. मैं ठीक होगा क्या? मेरे को परमेश्वर जवाब देगा क्या? मुझे मुझे चंगाई मिलेगी क्या? मुझे मेरी भरपूरी मिलेगी क्या? मुझे आशीष मिलेगा क्या? क्या परमेश्वर मुझे ये देने में समर्थ है क्या? क्या मुझे ये मिल सकता है क्या? या फिर मुझे परमेश्वर अच्छा लड़का देगा क्या? या मुझे कोई अच्छी लड़की देगा क्या? ये हो सकता है क्या? मुझे 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 बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी क्या? ये जब आप ऐसे सवाल आपके जहन में या फिर आपके मुंह से दोहराते हो, परमेश्वर के लोगों को इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपने आपका जवाब गवा दिया. क्यों? क्योंकि आपने शक को जगह दी है. जहां पर विश्वास आता है वहां पर शक या भय को कोई जगह नहीं होनी चाहिए. और अगर आपने शक या भय को जगह दे दी, इसका मतलब आपका विश्वास खलास हो गया है और परमेश्वर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता. येस, देव तुम्हाला कोणतंच उत्तर नाही देऊ शकणार. देव नाही देऊ शकणार हे एकच असं काम आहे जो देव नाही करू शकत. येस, please, yeah, trust me on this point. God is working through your faith. परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा कार्य कर रहा है, खुद के विश्वास के द्वारा कार्य नहीं कर रहा है. अगर आपको जवाब चाहिए तो परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा कार्य करेगा, खुद के नहीं. आप वो परमेश्वर के दास के नहीं, आप मेरे विश्वास के द्वारा आपके जिंदगी में कार्य नहीं होने वाला. हाँ, वो शुरुआत में होता है. वो कोई लोग जो नए आते हैं तो परमेश्वर के दास का विश्वास का कार्य उपयोग करता है और उनको चमत्कार दे देता है. लेकिन जब आप भक्त में से आपका रूपांतर बच्चे में अगर हो गया है, आपका परिवर्तन अगर भक्त में से बच्चे में हो गया है, तो परमेश्वर की मंशा होती है कि आप उसको पिता मानते हुए आपका विश्वास उस पे डायरेक्टली हो. आमेन. और उस विश्वास के अनुसार आप चले. आमेन. तो इसीलिए बहुतांश लोग आज उनके जवाबों के लिए अटके पड़े हैं. क्यों? क्योंकि उनका विश्वास सही नहीं है. या लेट्स रीड. हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय वचन 58. मत्ती 13 वचन 58. Matthew 13 verses 58. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Yes, उनके अविश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह खुद के ही गांव में महान कार्य नहीं कर सका. प्रभु यीशु मसीह जिसने अंधों को आंखें दी थी, बहरे जो लोग थे उनको कान दिए थे सुनने के लिए, जो गूंगे थे उनको जुबान आई थी, जो 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 पैरालिटिक थे उनको परमेश्वर ने चंगाई दी, जो मर गए थे उनको परमेश्वर ने जिलाया. लेकिन उसके खुद के गांव में वो कुछ नहीं कर सका. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ, उनके अविश्वास के कारण. या ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना आज की तारीख में. कैसे ना हमारा विश्वास नहीं है,
और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में कुछ कार्य किया नहीं है, बहुत ज़बरदस्त महान कार्य किया। मैंने कुछ बोला था उस मैसेज में, मैंने बोला था कि यहोशू जो था, वो मूसा से ज़्यादा पवित्र नहीं था। वो मूसा से ज़्यादा परमेश्वर के करीब नहीं था। लेकिन फिर भी जो मूसा कभी नहीं कर सका, वो यहोशू ने कर दिखाया, और वो था, उसने सूरज को क्या उसको बोलते हैं, अस्त होने से रोका। इसका मतलब ये होता है, पृथ्वी को घूमने से रोका। सोचो, पृथ्वी अगर घूमने से रुकी तो बहुत बहुत क्या उसको कहते हैं, प्रलय आ जाएगा इस दुनिया में। समुंदर अपना बांध तोड़ेगा, पर्वत गिर जाएंगे, सब कुछ पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, पूरा पृथ्वी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो पूरा हिल जाएगा। और कितनी बर्बादी, सुनामी आएंगे, क्या क्या नहीं, कितने भूकंप हो जाएंगे। कहीं कैसे, कहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे जगहों से ज्वालामुखी फूटेंगे। कितना नुकसान इस धरती पे होगा। लेकिन आप ये बात को सोचो, पृथ्वी पूरे एक दिन के लिए रुक गई, और पृथ्वी पे सब लोग वैसे के वैसे ही चल रहे थे। कुछ प्रॉब्लम नहीं था, किधर भी भूकंप नहीं आया, ना ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, ना कुछ नहीं। सब कुछ अपने अपने जगह पे था और सब कुछ सही चल रहा था। ये कंट्रोल कौन कर सकता है? ये सिर्फ खुदा कर सकता है। जिस जिस चीज को उसने बनाया है, वो उसे रोक भी सकता है, और वहां पर कुछ भी बिगड़ नहीं सकता। ये सिर्फ खुदा कर सकता है। आमीन। और ये काम किसके द्वारा परमेश्वर ने करके दिखा? यहोशू के द्वारा। परमेश्वर के लोगों, इस बात को सोचो, क्या विश्वास रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा विश्वास था, नहीं। क्या विश्वास था। विश्वास की क्वालिटी देखो, उस विश्वास की गुणवत्ता देखो आप, कि उसने सीधा बोल दिया और परमेश्वर ने इंसान का सुना। बाइबल में लिखा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर ने इस बात के लिए इंसान का सुना है, और परमेश्वर ने सुना। माय गॉड, विश्वास परमेश्वर को पृथ्वी रोकने को लगा सकता है। वाह वाह वाह। अगर आपका विश्व कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, थिंक अबाउट इट। तो परमेश्वर के लोगों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सो फेथ कांट बी हाफ। विश्वास अधूरा नहीं रह सकता, आधा नहीं रह सकता। रिमेंबर, अभी एक बात सुनिएगा, रिमेंबर, इट्स नॉट बाय माइट nor by power, but by my spirit, but by the Holy Ghost, it shall be done. And the Holy Spirit needs faith to work. The atmosphere for the Holy Spirit is faith. Amen. अगर देखो, इस बात को समझिएगा, अगर पवित्र आत्मा है जो आपको चमत्कार देने वाला है, तो पवित्र आत्मा के लिए जो माहौल लगता है, कार्य करने के लिए जो माहौल लगता है, वो है आपका विश्वास। आमेन। यस। और अगर आपका विश्वास सही नहीं है, तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। आमेन। या So the atmosphere for the Holy Spirit to work is your faith. Amen. Hallelujah. तो अगर पवित्र आत्मा ही मेरा जवाब लाने वाला है, तो पवित्र आत्मा के लिए जो जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण लगता है, वो विश्वास का लगता है। जहाँ पर अविश्वास है, वहाँ पर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर सकता। आप यहीं पर देखो ना यीशु मसीह को। यीशु मसीह के कार्यकाल में जब यीशु मसीह उसके गांव में गया, वहाँ पर उनका विश्वास नहीं था, इसलिए पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह के द्वारा कुछ भी बड़ा कार्य नहीं कर सका। कितनी बड़ी दुखद घटना है कि बाजू वाले के गांव में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, और उसके खुद के गांव में वो कुछ नहीं कर सका, ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? बिकॉज उनका विश्वास नहीं था। कितना बड़ा लॉस हो गया। आप इस बात को सोचो। परमेश्वर के लोगों, क्या आज हमारी परिस्थिति ऐसी है? हम यीशु मसीह में तो है, हम यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, पुकारते, दुआ भी करते हैं, लेकिन वो कार्य करेगा क्या? होगा क्या?
सच में होगा क्या, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, 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 क्या करूं। ये अपनी हालत है क्या आज? क्या ऐसी ऐसी हमारी परिस्थिति है आज? परमेश्वर लोगों, अगर ये ऐसी परिस्थिति हमारी है तो हमें खुद को सही करना जरूरी है, क्योंकि हमें जवाब चाहिए, हमें चमत्कार चाहिए। हमें वो चाहिए जिसके लिए हम परमेश्वर पे बात जोड़े हैं परमेश्वर की। आमीन। और वो हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आमीन। आइए हम थोड़ा और आगे जाते हैं। लेट्स गो अहेड नाउ। अभी मेरा सेकंड पॉइंट है गॉड एंड फेथ। हमें ये बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर के लिए विश्वास क्या होता है। हमारे लिए तो विश्वास रॉ मटेरियल है, लेकिन परमेश्वर के लिए विश्वास क्या है? ये बात को अभी ध्यान से सुनिएगा। मैथ्यू 13 एवरीबॉडी एंड वर्स 58, वही अध्याय, मत्ती 13वां अध्याय एंड वर्स 58। एंड ही डिड नॉट मेनी माइटी वर्क्स देयर बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। अभी सुनिए, the turf of God for your miracles is your faith. Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर का जो मैदान है आपके चमत्कार को अस्तित्व में लाने के लिए, आपके जवाब को अस्तित्व में लाने के लिए, वो मैदान का नाम है विश्वास। आमेन। परमेश्वर को विश्वास नाम के मैदान की जरूरत होती है आपके जिंदगी में चमत्कार लाने के लिए। हालेलुया। आमेन। अकॉर्डिंग टू गॉड, फेथ इज टेलिंग गॉड थ्रू योर वर्ड्स एंड एक्शन दैट ही कैन डू इट। आमेन। आमेन। परमेश्वर के लिए विश्वास यह है कि आपके शब्दों के द्वारा और कृति के द्वारा आप परमेश्वर को जताते हो, दिखाते हो, बताते हो कि तू कर सकता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कि तू कर सकता है, मुझे तुझ पे कॉन्फिडेंस है। आमेन। देखो संतो, इस बात को सुनिए, जब कभी भी हम हमारे माँ बाप के ऊपर कॉन्फिडेंस जताते हैं ना, मसलन समझो कि अभी पिताजी है, हम स्कूल में हैं, ओके, और हम बिंदास, बिना संकोच, बिना कोई सोच, हम बिंदास जाते थे और हमारे पिताजी से, माँ से सीधा ये कहते थे कि मुझे कंपास बॉक्स चाहिए, मुझे बैग चाहिए, मुझे किताबें चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए, मुझे नया शर्ट चाहिए। तो जब हम बिना सोचे कि माँ बाप कर सकते हैं क्या, उनके पास पैसा है क्या वो लाएंगे क्या, ये हम कभी नहीं सोचते थे। याद करो उन दिनों को, हम बिंदास जाते थे और माँ बाप से चीज़ें मांगते थे, चॉकलेट मांगते थे, कुछ भी मांगते थे, और शाम तक वो चीज़ें या फिर 1 या 2 दिन के बाद वो चीज़ें हमारे हाथों में होती थी। हमें तो परमेश्वर के लोगों इस बात को समझिएगा कि परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है जब आप उस पर कॉन्फिडेंस दिखाते हो, क्योंकि वो भी हमारा पिता ही है, वो ही हमारा पिता है। और जब बच्चे उसको कॉन्फिडेंस जताते हैं ना, परमेश्वर खुशी से उछलने लगता है स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर के करीब है उसके संतान, उसके बच्चे, जिनको उसने लहू और आत्मा के द्वारा जना है। आमेन। ज्यांना त्यांनी रक्त आणि आत्म्याद्वारे जन्म दिलेला आहे, ओके, ते लेकर देवाच्या अतिशय अंतःकरणाच्या जवळ असतात आणि ते लेकर देवाला फार आवडतात संतो, म्हणजे फार आवडतात। आणि अशी लेकर ज्यावेळेस त्याला सांगतात की मला फुल गॅरंटी देवा, तू केलेलं आहे, मला टेन्शन घ्यायची काही गरज नाही, डॅडी है ना, टेन्शन नाही लेने का, डॅडी तू आहे ना, मला काय टेन्शनची गरज नाही आहे, कारण तू आहेस ना यार, तू आहे म्हणजे डन आहे, डनच आहे, हे मी नेहमी म्हणतो। तर आय ऑलवेज से दिस, लॉर्ड डॅडी, इफ यू आर देयर, आय डोंट केअर अबाउट एनीथिंग, बिकॉज आई नो यू आर देयर। एक बार मुझे अभी भी याद है, मुझे
वो वाक्य याद आने लगा है। जब मैं तीसगांव अप डाउन कर रहा था, मेरे पास टोयोटा कोरोला गाड़ी था और मेरा गाड़ी का आगे का जो कांच था उस पर बहुत स्क्रैचेस थे, बहुत। और रात को जब हम ड्राइविंग करते थे 11:30, 12, 1, 2, मैं 2 बजे तक तीसगांव पहुंचता था, क्योंकि यहाँ से मैं सर्विस पूना से कंप्लीट करके तीसगांव जाता था रात को 2 बजे, शाम को सर्विस कंप्लीट करते पूना में। तो सामने से जब फ्लैश लाइट आता था गाड़ी का, बहुत बड़ा हेडलाइट तो मुझे सामने मेरा कांच है ना पूरा सफ़ेद होता था, वाइट, और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, नथिंग, जब तक वो सामने वाली गाड़ी जाती नहीं। और ऐसे लाइन से गाड़ियाँ आती जाती रहती है, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। और मैंने एक बार परमेश्वर से कहा था, परमेश्वर अगर मेरा एक्सीडेंट अगर होता है इस रात को इधर रास्ते में, तो मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है। तो तब परमेश्वर ने मुझे कहा था कि बात सुनिएगा, अल्फाजों को सुनिएगा, कि अगर तुझे इधर एक्सीडेंट तेरा हुआ और तुझे अगर 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी ना रात को, तो मैं तुझे 20,000 रुपया जगह पे दूंगा, लेकिन तेरा एक्सीडेंट कभी नहीं होने वाला। ये मुझे परमेश्वर ने बताया। और जब ये बताया, तब के उस दिन के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया, माय गॉड। इसी फेथ कमित बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास आता है वचन, और वचन वो भी परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने वो अल्फाज कहे, मेरा उतना ही काम था कि उस पे पूरा भरोसा डालूं और आगे निकल जाओ। और वही मैंने किया। 5-6 सालों तक मैंने वही किया। और परमेश्वर के संतों, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मेरे एक गाड़ी को उन सालों में, उन वर्षों में एक स्क्रैच, एक खरोच भी नहीं आई, नथिंग। वाओ। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को बड़ा अच्छा लगता है जब उसके बच्चे उसमें कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। वाह, उसमें गर्व करते हैं। उसमें क्या उसको कहते हैं, उसमें विश्वास दिखाते हैं। अरे मेरा परमेश्वर करेगा, मेरा डैडी करेगा 100%। मैं जानता हूँ, उसने पहले से करके रखा है, इट्स डन। आमेन। तो जब ये आपके अंदर, जब ये फीलिंग में उमड़ने लगती है, बढ़ने लगती है आपके अंदर, तब परमेश्वर को वो माहौल, वाह, आई कैन फील योर अनॉइंटिंग, वो माहौल सही लगने लगता है। अभी मैं यहाँ पर कार्य कर सकता, अभी मेरा पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडरा सकता है। और जब पवित्र आत्मा मंडराएगा, तब वो कहेगा, लेट देयर बी लाइट, एंड देयर वाज लाइट। हालेलुया। संत हो, इस बात को समझिएगा, पवित्र आत्मा का कार्य करने का माहौल है आपका विश्वास। जब आपका विश्वास उतर आता है, पवित्र आत्मा उतर आता है। पवित्र आत्मा को फील होता है, यस, अभी मैं यहाँ पर कार्य कर सकता हूँ, ये मेरा टर्फ है, दिस इज माई टर्फ एंड आई कैन वर्क हियर। वाह, ये मेरा मैदान है और इस मैदान में मैं कार्य कर सकता हूँ। ये है वही माहौल जब दाऊद और गलियात आमने सामने खड़े हैं। आमेन, हालेलुया। यही है वो माहौल। आगे हम देखने वाले हैं इस बात को। ओके, तो इस बात को समझिए। आइए हम पढ़ते हैं मैथ्यू 21, एवरीबॉडी। मत्ती 21 वचन 21 से वचन 22। मैथ्यू 21 वर्सेस 21 टू वर्स 22। मत्ती 21वां अध्याय वचन 21 से 22 पर्यंत। Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. Hallelujah. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. Amen. तो परमेश्वर के लोगों,
देखो, परमेश्वर के लिए ना विश्वास क्या होता है? वो उसका मैदान जहां पर वो कार्य कर सकता है। तो परमेश्वर के लिए क्या है? इफ यू हैव फेथ एंड डाउट नॉट। तो जब आपने विश्वास रखा है और आप जब संशय या शक नहीं करते, तो परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए बहुत बड़ी आसानी होती है। मसलन एक एग्जाम्पल ले लो, आप एक उदाहरण ले लो। आप एक ग्राउंड पे चले गए, वहां पर आपको क्रिकेट खेलना है, और उस ग्राउंड पे आप देखते आ रहे बहुत सारे पत्थर है। तो आप क्या करते हो? वो पहला ग्राउंड को पत्थर से आज़ाद करते हो, पूरा निकाल देते हो, पूरा साफ कर देते हो। आमेन। हाँ, फिर वहां पर आप स्टंप लगाते हो, फिर वहां पर आप पिच लगाते हो, फिर वहां पर आप गेंद फेंकते हो, बैटिंग करते हो, बॉलिंग, मसलन जो भी है, XYZ। ओके, आमेन, राइट। तो वो जो पत्थर होते हैं ना, वो है अविश्वास, वो है संशय, वो है शक, और उसके वजह से आप वहां पर क्रिकेट नहीं खेल सकते। आप परमेश्वर वहां पर कार्य नहीं कर सकता। विश्वास का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में पत्थर है। आमेन। या तो परमेश्वर के लोगों, आप एक किसी भी बॉलर से पूछिएगा, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने देखा होगा कि बॉलर जब आता है तो पहला वो पिच पे देखता है वहां पर कोई कंकड़ है या पत्थर है क्या। आपने बहुत बार देखा होगा, बैट्समैन भी वहां पर जाके बैट को मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि वहां पर अगर उसको थोड़ी भी सख्त जमीन लगी तो वो बॉल बाउंस हो सकता है और उसको शॉट मारने को मुश्किल हो सकती है। इसलिए वो उस पिच को सही करता है बैट मार के। बॉलर भी कंकड़ पत्थर निकालता है। तो क्योंकि वो बॉल उस कंकड़ या पत्थर को लग के कहीं भी जा सकता है। तो वैसा होता है विश्वास का मैदान। आमेन। वहां पर अगर कंकड़ पत्थर है अविश्वास के, तो आप वहां पर खेल नहीं सकते, परमेश्वर वहां पर कार्य नहीं कर सकता। आई बात समझ में? ओके, नाउ तो परमेश्वर के लिए विश्वास इज योर टर्फ, द मैदान, परमेश्वर का मैदान, जहां पर परमेश्वर आपके जिंदगी में आपके लिए जवाब देने वाला है। आइए हम आगे जाते हैं। ओके, नाउ Hebrews 11 verse 6, इब्रानी की पत्री का 11वां अध्याय वचन 6, but without faith it is impossible to please him. इब्री लोगोस पत्र 11वां वचन 7, but without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that is a rewarder of them that diligently seek him. Okay. जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है, उसने ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि वो है, मुझे जवाब देने के लिए वो समर्थ है। आमेन, आमेन। मैं इस विषय के ऊपर बाद में आऊंगा सीरीज में। ओके, नाउ लेट अस गो अहेड। तो परमेश्वर के लोगों, आइए हम इस बात को थोड़ा और गहराइयों में समझते हैं। परमेश्वर के लिए ना विश्वास आपका बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो कच्चा माल है जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जिंदगी में कार्य करेगा। अगर आपका विश्वास सही नहीं है, ओके, अभी मैं यहां पर थोड़ा ठहर जाता हूं। विश्वास सही नहीं है। विश्वास क्यों सही नहीं है? किन किन वजहों से, ध्यान से सुनिए, किन किन वजहों से आपका विश्वास डगमगाता है, या फिर सही नहीं होता है, या फिर प्रदूषित होता है। वो चीजें हैं। पहली बात तो अभी मैं जो बताने वाला हूं, ये बहुत बड़ी चाबी है, और परमेश्वर की अपेक्षा है कि आप इस चाबी का इस्तेमाल करें। सुनिएगा, जब आप आत्मा में या फिर पवित्र आत्मा के साथ रिदम में, या फिर ठेके पे, या फिर आप कह सकते हो फ्लो में, उस बहाव में नहीं चलते ना, तभी आपका विश्वास प्रदर्शित होता है। यस, मैं फिर से कह रहा हूं, मराठीत सांगतो, जेव्हा कधी आपण पवित्र आत्म्याबरोबर तालामध्ये ताल लावून, बीटवर बीट लावून, म्हणजे पवित्र आत्म्याद्वारे ज्यावेळेस आपण चालवले जात नाही ना, जेव्हा आपण देहामध्ये चालवले जातो, ज्यावेळेस आपलं लक्ष पवित्र आत्म्याकडून हटून जगिक गोष्टीकडे असतं ना, किंवा कोणत्याही गोष्टीकडे, मग ते भय असो, उदासीनता असो, दुःख असो, क्लेश असो,
काही असो, जर का आपलं लक्ष पवित्र आत्म्याला सोडून भलतीकडे जेव्हा असतं ना, त्याच वेळेस आपल्यामध्ये विश्वास नसतो. I say in English, whenever we do not walk in rhythm, in sync, in rhythm with the Holy Spirit, in sync with the Holy Spirit, and whenever we are not led by the Holy Spirit of God, that's the time when we don't have faith. Yeah. क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के साथ उस रिदम में चलते हैं ना, उस सिंक में चलते हैं, बीट पे चलते हैं ना, वी विल हैव फेथ. हमें 100% विश्वास हम में होगा ही होगा, क्योंकि जहां पवित्र आत्मा है वहां पर रेमा है, और जहां पर रेमा है वहां पर विश्वास है. आमेन, हालेलुया. सो पीपल ऑफ गॉड, अभी हमें एक होमवर्क करना है, और ये देखना है कि मैं पवित्र आत्मा के साथ चल रहा हूं क्या. पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब क्या है, मीन्स व्हाट डज इट मीन. देखो, बहुतांश लोगों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो दुआ खत्म करने के बाद में पवित्र आत्मा के साथ चलते ही नहीं है. वो पवित्र आत्मा को वहीं छोड़ देते हैं और अपने शारीरिक जिंदगी में बढ़ने लगते हैं. हम क्या करते हैं, मैं इस बात के ऊपर मैं स्पेशल बाइबल स्टडी लेने वाला हूं कि पवित्र आत्मा को हम पवित्र आत्मा का इस्तेमाल हम कैसे करें, या फिर पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में, फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग. ओके, पवित्र आत्मा को मेरे जिंदगी में मैं शामिल कैसे करूं. यस, दैट्स द राइट पॉइंट, दैट्स द राइट टॉपिक. हाउ शुड आई इन्वॉल्व द होली स्पिरिट इन माय लाइफ. या आई थिंक आई शुड टेक अ बाइबल स्टडी ऑन दिस पॉइंट, एक्सप्रेसली ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज क्योंकि बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि पवित्र आत्मा को मैं मेरे जिंदगी में शामिल कैसे करूं. या वो जो अभिषेक मुझे अभी आया था रूम में, उसका मैं करूं क्या. Yeah, see, because देखो, faith is all about action. विश्वास सब कुछ जो है वो कृति के बारे में, एक्शन के बारे में है. अगर मेरा विश्वास है और मैं उसको कृति में नहीं ला रहा हूं तो उसका कुछ फायदा नहीं है. वैसे ही अगर मैं दुआ में बैठा हूं मेरे रूम में, मुझे अभिषेक से परमेश्वर ने बहुत भरा है, मुझे बहुत आत्मा के अभिषेक से भर दिया है, और जब मैं आमेन कह के रूम के बाहर आता हूं तो मैं उस अभिषेक का करूं क्या. राइट. लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो कैसे इस्तेमाल में लेके आए. तो मैं इसके ऊपर अगले बार मैं स्पेशली ये स्टडी लेने वाला हूं. ये टॉपिक में थोड़ी देर के लिए एक टीचिंग के लिए मैं पॉज करने वाला हूं, क्योंकि लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हाउ डू आई यूज द अनॉइंटिंग. मी अभिषेक वापरू कसा, या पवित्र आत्म्याचं करू काय. या आणि ह्याच्यामुळे पुष्कळांचे पवित्र आत्मा बरोबर संबंधच नहीं है. इसके वजह से बहुतांश लोगों को पवित्र आत्मा के साथ उनका रिश्ता ही नहीं है. उनको समझ में आता ही नहीं है कि हाउ डू आई रिलेट विद द होली स्पिरिट. या लेट्स प्रे पीपल ऑफ, हम दुआ करते हैं. एंड नेक्स्ट बाइबल स्टडी में मैं ये लेने वाला हूं कि पवित्र आत्मा को दुआ के बाद मैं मेरे जिंदगी में शामिल कैसे करूं. Amen. Let's pray. Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive. Thank you, Jesus, for talking to us and showing to us, oh Lord my God, where we need to check on, where we need to improvise, where we need to become better, Lord my God. Holy Spirit of God, you take charge, Lord. And I pray right now, Lord my God, help us all, your people, Lord, to analyze our faith life, Lord my God, to clear the turf, your turf, the turf of faith in our lives, oh Lord my God, to clear it of all doubt and disbelief and fear, Lord my God. Oh Lord, oh Lord my God, I pray, Lord, help us all, Lord my God, to change our lives, Lord my God, to build our lives upon the rock of all ages, upon the word of God, oh Lord. Holy Spirit of God, you take charge, Lord. You lead us and you guide us, oh Lord my
God. And help us, Lord my God, to bring forth fruit hundredfold according to today's word. Thank you, Jesus, for this time, Lord. And Lord, I pray, Lord, anybody that is sick in this place right now, Lord my God, I command the sickness to be gone in Jesus' name. Get out, come on in Jesus' mighty name right now, Lord. I release a healing anointing, Lord. Touch and heal your people, Lord my God. I bring your people and today's word and today's anointing under the covering of the Lord's blood, the Lord's oil, of the Holy Spirit, Lord. Just touch and change lives, Lord. Help us, Lord my God, to make the raw material, the faith raw material, pure, clean, and perfect, Lord, to clear your turf of all doubt and disbelief and fear. In Jesus' name I pray and I ask. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, everybody. और मुझे विश्वास है और गारंटी है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की, आपसे मुलाकात ली है, और मुझे विश्वास है और उम्मीद है और गारंटी है कि आपको आज आपकी आंखें खुल गई है कि यार मुझे विश्वास के ग्राउंड को सारे पत्थरों और कंकड़ों से आज़ाद करना है, अविश्वास के भय के पत्थरों और कंकड़ों से आज़ाद करना है। आमीन। और एक बात आपको आज समझ में आई है कि हाँ, मैं पवित्र आत्मा को मेरे जिंदगी में दुआ के बाद शामिल करता ही नहीं हूँ, और इसीलिए अविश्वास मेरे दिल में, मेरे मन में भरा पड़ा है। जहाँ पर पवित्र आत्मा है ना, वहाँ पर अविश्वास नहीं आता है। आप थोड़ी देर के लिए एक बात मैं यहाँ कहता हूँ। जब आप दुआ में रहते हैं, ओके, और आप पूरे अभिषेक से भर रहे होते हैं, आप भीग रहे हैं अभिषेक से, पूरा आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आया ही, और जस्ट अंडर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, फुल फायर, फुल पावर आपके ऊपर है, तब आपके मन में अविश्वास आता है? नहीं आता है ना। तो बाहर आने के बाद क्यों आता है? क्योंकि हम उस रूम के बाहर पवित्र आत्मा को हमारे ज़िंदगी में शामिल करते ही नहीं हैं। अगर आपको कोई सवाल है इस स्टडी के ऊपर, तो कृपया करके नीचे दिए हुए नंबर पे आप आपके सवाल को भेज सकते हैं। और अगर आपको इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिली है, तो कृपया करके आपके सारे मसीह भाइयों और बहनों को ये मैसेज को प्लीज़ आप फॉरवर्ड कीजिएगा। टैबरनेकल मिनिस्ट्री इंटरनेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और बहुतांश मसीह भाइयों बहनों को इस वचन के द्वारा आशीषित कीजिए। प्लीज़ आशीष को अपने पास ही मत रखिए, क्योंकि आशीष बांटने से बढ़ता है। गॉड ब्लेस यू। फिर से एक बार मिलेंगे अगले हफ्ते। प्रेज द लॉर्ड।